تو اب میں یہ کھیل جو ہے جس کا عنوان ہے علامہ اقبال اور جمی کارٹر بولاورڈ، یہ انعام بھائی نے ہی اس کو لکھا ہے، اور اس میں جو اداکار اس کو پیش کریں گے وہ ہے، یہ نظر نہیں آ رہے کہاں پہ ہے، اچھا، تو ڈاکٹر اشر نیازی، جو اگر آپ نے انعام بھائی کے پہلے کے پلے دیکھے ہیں، ہاف پلیٹ، ٹوٹی پلیٹ، اس میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا، اور فضلین سوہانی جو بھی ان ڈراموں میں تھیں اور وہ بھی گاتی بھی بہت اچھا ہے، تو وہ دونوں ڈرامے کو پیش کریں گے. تو اب میں دعوت دوں گا ان دونوں کو کہ وہ آئیں اور یہ ڈرامے کا آغاز کریں. ارے واہ، کیا خوب دنیا سجا رکھی ہے. Oh my God. Is he? He is. He is who I think he is. OMG. Check this out. Wow. Are you? Allama Iqbal? Right? آپ تو ڈر ہو گئے تھے نا؟ آپ تو مر گئے تھے نا؟ ارے بی بی، شاید پیدا مشکل سے ہوتا ہے، مرے گا کیسے؟ شاید کبھی نہیں مرتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. مگر آپ نے خوب پہچانا، میں ہی اقبال ہوں. مگر آج تک ہماری دیر سے آنے کی واو، لیکن اقبال صاحب، آپ یہاں جمی کارٹر بولیوارڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ I mean, this isn't really your type of place, you know. I mean, this place ain't about poetry or philosophy, but more like chicken tikka, kebab, and your nargisi kofte. ارے بی بی، میں تو یہاں صدر جمی کارٹر سے ملنے آیا. یہاں آ کر پتا چلا کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں. امن کے علم برداروں سے ملنا میرا پرانا مشغلہ ہے. افسوس تو ہے مگر مایوسی نہیں. اب دیکھیے نا، اسی بہانے آپ سے ملاقات ہو گئی. استاد کا شعر ہے، غم سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی I doubt that. مجھے لگتا ہے آپ واقعی یہاں نہاری اور پانی اڑانے آئے ہیں. میرے خیال سے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. شاعری بھوکے پیٹ کون سمجھتا ہے؟ دیکھا پکا پاکستانی نکلے نا آپ بھی فوڈی فلاسفر. اینڈ جسٹ when I thought کہ آپ ہوں گے نصرت فتح علی خان صاحب کی طرح کوئی صوفی شاعر، آپ بھی نکلے نا ٹوٹل فوڈی جیسا ہی. صوفی ہو یا شاعر، جسم کی غذا بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی روح کی. میں نے کہا نا، شاعری اور فلسفہ بھوکے پیٹ سمجھ نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اقبال صاحب ایک سیلفی ہو ارے جائے. یہ کیا خرافات ہے؟ شرمائیں نہیں آپ، ذرا دیکھیں نا یہاں پہ، میں کب سے آپ کے پیچھے گھوم رہی ہوں. دیکھیں انسٹاگرام پہ ٹائٹل آن انسٹاگرام، اقبال ان اٹلانٹا، Cody to Nihari. ارے یہ کیا کھوتی کھوتی لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا تعلق لاہور سے ہے، لیکن اس وقت کھوتی کے نہاری نہیں ملتی تھی. No, Iqbal Sahab, you got it all wrong. Cody, you're very popular, Cody. میرے خیال سے آپ
खुद ही कहना चाह रही हैं। Of course, same to same. वैसे मोहतरमा मैं समझ नहीं पाया, आपका ताल्लुक किस शोबे से है? Well, I am a social media influencer, Twitter expert, and abhi, I'm an Urdu lover, head to toe. अरे भाई, ये कौन सा मकतबा फिक्र है? हैं? फिक्र? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। और आपने भी घबराना नहीं है। प्लीज एक इंटरव्यू दे दीजिए, मेरे इतने लाइक्स बढ़ जाएंगे, आग लग जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे पहले लोग इकबाल को फिक्र बढ़ाने के लिए सुनते थे, अब व्यूज बढ़ाने के लिए। खैर, अब यहाँ आ ही गए हैं तो ये जुल्म भी झेल ही लेंगे। बैठिए, शुरू कीजिए आप अपना इंटरव्यू। बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। You know, I came completely prepared with my questions and my live feed. Let's put this here. आपको अंदाजा नहीं है क्या आग लगने वाली है। मेरे सारे राइवल्स, उनके पास तो कुछ कहने के लिए बचेगा ही नहीं। अब आपको तो पता है मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। Of course, मैंने तो आपकी दोनों poems भी पढ़ी हैं। एक तो शिकवा and the reply to शिकवा। मेरे ख्याल से आप जवाब शिकवा कहना चाह रही है। Yeah, same. अच्छा, तो ये बताइए कि इकबाल साहब, आपने सवाल भी खुद ही लिखा और फिर जवाब भी खुद ही को। मतलब ये तो वही हो गया ना कि मैं पेपर भी खुद ही सेट करूंगा और फिर पासिंग मार्क्स भी खुद ही को। बात तो आपने हंसी में कही है, मगर सच तो ये है कि शिकवा लिखने के बाद कुछ लोगों ने मेरे ईमान पर शक किया। कहने लगे ये शख्स खुदा से शिकायत करता है, ये तो काफिर है। मैंने कहा भाई, शिकवा भी तो उसी से किया है जिसका ईमान है। OMG. So the Muslims defriended you, like quite literally. आज के जमाने में डिफरेंट करते होंगे, तब काफिर कह के बंदा जिंदा दफन करने की तैयारी करते थे। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। गली में गुजरो गलते उवैस और चादरे ज़हरा। Wow. तो इसका मतलब है कि आपने लिखी your answer to शिकवा in complete retaliation. इन फेथ लिखी। 4 साल खामोश रहा, सोचता रहा कौम को कैसे समझाऊं। मेरा शिकवा खुदा से नहीं बल्कि इंसान से था, जो अपनी रूह को भूल गया। आखिरकार जवाब शिकवा लिखी ताकि बता सकूं खुदा खामोश नहीं, बस हम बहरे हो गए। अच्छा, so you lived in the times of English people, right? Tell me your opinion about them. Like, how were they? Very gentle, very stylish? जी हाँ, बहुत जेंटल, इतने स्टाइलिश कि अकल को भी पतलून पहना दी। Oh my God, you are so funny. But you have to give it to them, Iqbal Sahab. They were so disciplined. Like always on time, always saying good morning. जी हाँ, गुड मॉर्निंग जरूर कहते थे, पर शाम तक किसी कौम की इवनिंग कर देते थे। Oh my God. मतलब आप तो उन्हें लाइक ही नहीं करते थे। अरे बीबी, लाइक तो मैं सूरज को भी करता हूँ, मगर जब वो भी ज्यादा आबोताब के साथ चमकने लगता है
साया भी ढूंढ लेता हूँ. क्या बात. ये तो मेरे भी समझ आया. Something very deep, very philosophical. लेकिन आपने कभी, oops, I'm sorry, आपने कभी किसी इंग्लिशमैन से लड़ाई की? लड़ाई तो नहीं की, अलबत्ता कलम से उन पर वार जरूर किया. Wow, how romantic! Like you fought with a pen, a ballpoint pen. अरे यही समझ लो. फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे पास था पॉइंट और उनके पास था वाह. बल्कि बल्ला भी. Wow. I think I found my caption. Iqbal in Atlanta. Iqbal, the first anti-colonial influencer. Wow. अरे वाह बीबी, जो लक़ब आपने मुझे दिया है उस पर तो विक्टोरिया रानी भी कब्र में लाइक कर देगी. You have some sense of humor. वैसे हमने पहले ही कुछ आप जैसे लोगों के लिए कह दिया था, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान होगी. हैं? वैसे दास्तान से मुझे याद आया. The British gave you the Sirka title, right? The British government. So were you more like a school teacher type of sir? Like बच्चे खड़े होके कहते हैं good morning sir, like that? अरे नहीं भी, ये सर वो सर नहीं था. ये वो सर था जिसको झुकाने के लिए कहा गया, मगर मैंने सर नहीं झुकाया. बहुत अच्छा. Wow. लेकिन so you were not a school teacher, and all this time, of course, आपके दोनों पॉइंट्स के साथ भी मुझे लगा कि आप होंगे कोई school teacher, teaching Urdu and philosophy to little kids, you know? बच्चों को नहीं पढ़ाया, बड़ों को पढ़ाया, मगर अफसोस वो भी पास नहीं. Oh, that's kind of sad. That shows what kind of teacher you were. But I still don't get it. Why did the British give you Sirka title? इन्हें लगा कि सर का खिताब देने से मेरी सोच उनकी अताअत में आ जाएगी. मगर मैंने तो पहले ही कह दिया था, बंदा मोमिन का दिल बीमो रिया से पाक है, कुव्वत फरमा रवा के सामने बेबाक है. I didn't quite understand it, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था. But Iqbal sir, I still feel you should have appreciated the British a little bit more. I mean, after all, they were such gentle people. जी हाँ, इतने जेंटल कि पहले मुल्क लेते हैं फिर शुक्रिया भी अदा करते हैं. Oh my God, you really are hilarious. You have some very dark humor. So you never really used the Sirka title. अरे नहीं, मैं सर नहीं, मैं सिर्फ इकबाल ही कहता. ना मैंने कभी सर लिखा, ना कहलवाना पसंद किया. Ah, so you really are a poet? Urdu poet? वैसे मुझे उर्दू पोइट्री बहुत नहीं आती, अगर अब तक आपको पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी बहुत शायरी तो मैं भी कर लेती हूँ. जरा अगर लिख रही अरे थी जी मोहतरमा, जो कुछ है उसको किताब में ही बंद रखिए तो मैं देता हूँ. इकबाल साहब प्लीज एक शेर, ये वाला तो मुझे याद है, I promise. सुनाइए, सुना दीजिए. Thank you. इरशाद किया है. किसने? मैंने खुद. The pen and myself. जी मोहतरमा, but tongue is yours. जो कुछ लिखा है बस आप सुना दीजिए और इंतजार नहीं. Oh wow. Iqbal wants to hear my poetry. Check this out. Social media के बगैर हर relation incomplete लगता है. इरशाद किया है. Social media के बगैर हर relation incomplete लगता है. Love हो या ना हो,
स्वीट लगता है। एक बात साहब, दूसरा एक और मौका, दूसरा शेर तो मैंने आपसे ही सीखकर, आपसे इंस्पायर होकर लिखा है। प्लीज अलाउ मी। ये भी कर गुजरिए, ये तीर भी चला दीजिए, सुना दीजिए। खड़ी को कर बुलंद इतना, खड़ी को कर बुलंद इतना कि हर वाईफाई घर कहे कनेक्टेड। खुदा के वास्ते बस कर दे, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखे मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस करें खुदा के वास्ते। And rude, aren't we? Anyways, let's continue the interview. Okay, so tell me, what was your most popular poetry? Like top hits, top 40 on the charts type? चार्ट्स? अरे बीबी, मेरी शायरी बाजार में बिकने वाली शय नहीं। मेरी पहचान तो ये है कि आज भी बच्चे ये दुआ पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ पल के तमन्ना मेरी, जिंदगी की सूरत दाया मेरी। जी, सुना था मैंने बहुत साल स्कूल की असेंबली में। इकबाल साहब, why would you write poetry like that? Like homework for kids? होमवर्क? Yeah. अरे बीबी, दुआ होमवर्क नहीं होती, दुआ तो नस्लों का सरमाया होती है। दुआ ना उम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की शम्मा रोशन करती है। बहुत अच्छे। Okay, anyways, what hashtag am I putting on my Instagram? I mean, are you an Indian poet? Are you a Pakistani poet? I mean, it's so confusing. मैं सरहदों का कैदी नहीं, बहुत अच्छे भाई, बहुत। मैंने पहले ये जरूर कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मगर जब दुनिया देखी और समझ में आई तो फिर ये भी तो कहा, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। Oh, Allama Iqbal going worldwide. Well. If you were alive today, Allama Iqbal sahab, you would be such a big influencer. Like you'd be all over Instagram and TikTok. टिक-टिक? अरे भाई, ये टिक-टिक क्या बना है? क्या किसी परिंदे का नाम है या घड़ी की टिक-टिक? No, Iqbal sahab, TikTok. You know, ये phone होता है, इसके अंदर एक ऐप होता है, उसको कहते हैं TikTok. इसमें लोग वीडियोस बनाता है, गाने गाते हैं, लिप सिंक करते हैं। Oh my God. सुभान अल्लाह, कौम के जवान अब इल्म और हिकमत को छोड़कर सिर्फ जुबान मिलाने पे मसरूफ है। बहुत अच्छे भाई। ए खुदा, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरी नजर, मेरा इश्क बख्श दे। पर इंस्टाग्राम पे सब नजर आता है। बहुत अच्छा नजर आता है, लोग सेल्फीज बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं, फिर इसका लाइक्स भी तो आता है। अरे बीबी, इंसान की असल कदर तो दिलों में होती है, ना कि उंगलियों की टिक-टिक में। हम तो कहते मर गए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? रजा को छोड़ें, आप बताएं कि आपकी सैलरी क्या थी? I mean, how did you survive? कोई पेंशन वगैरह? मेरा सरमाया दौलत नहीं, मेरी फिक्र थी। बस अब इस मौजू पे और बात नहीं होगी। चलें, मौजू चेंज करते हैं। इकबाल साहब, वैसे शादी वादी की या नहीं? गर्लफ्रेंड्स कितनी थी आपकी? I mean, people really dig that romantic angle, you know. मेरी शायरी इश्क हकीकी की तलाश थी, ना कि अफसानवी कहानियां। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात।
But audiences want entertainment, you know. Did you do any funny shairi? अरे कह तो रहा हूँ, मेरी हर बात उम्मत के जख्म पे मरहम थी, मजाक नहीं था। चलें, तो आप ये बताइए कि अपनी उम्मत को आप क्या कहेंगे, especially nowadays on the topic of Gaza. अखुवत इसको कहते हैं, चुभे जो कांटा काबुल में तो हिंदुस्तान का हर वीरो जवान बेताब हो जाए। उम्मत एक जिस्म की मानद है, मगर आज जिस्म का एक हिस्सा कट रहा है और बाकी हिस्से को एहसास तक नहीं। But बाकी हिस्सा थोड़ा busy है ना? I mean, they're busy making money in their careers and jobs and Iqbal Saab, unity is very out of style these days. You just don't know. Unity is old style. सुनो, मेरी बात गौर से सुनो और समझो। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मगर अफसोस, आज ये सितारे बिखर रहे हैं, दुनिया के ऐवान झिलमिलाते हैं, मगर रज़ा की माँ के आंसू और बच्चे की लाश बेखबर है। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? To be honest, Iqbal Saab, I really chased you down for like a light-hearted, funny interview. But even right now, I feel very heavy-hearted. न पूछ बाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत है उसकी, कहीं सरे राह गुजार बैठा, सितम कशे इंतजार। मगर एक दिन ये कौम जागेगी, जरूर जागेगी, मगर कब? यही सवाल है, यही इंतजार है। To be honest, Iqbal Saab, मुझे आपकी बातें बहुत तो समझ नहीं आती. But your words, they really weigh very heavily on my heart. You really shake my heart. अगर मेरी शायरी एक दिल में भी चिंगारी जला दे, तो समझो कि मेरा काम मुकम्मल। चिंगारी से मुझे याद आया वैसे आप हमेशा अपने शाहीन की बात करते हैं, राइट? तो मैं सोच रही थी कि आपने कभी कोई पैरेट, कोई पीकॉक इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? वैसे आपस की बात है, शाहीन आफरीदी मुझे बहुत पसंद है। तोते सिर्फ दोहराते हैं, मोर सिर्फ दिखावा करते हैं, शाहीन बुलंदियों की निशानी है, वो कफस को नहीं मानता, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। शाहीन बुलंदियों की निशानी है। मैं चाहता था कि मुसलमान भी जमीन पे रेंगने के बजाय आसमान की बुलंदियों में परवास करें। लेकिन वो परवास तो तब करते ना जब उन्हें आपकी शायरी समझ आती है। आसान ज़बान में लिख ले तो मेरे जैसे लोगों को भी आपकी शायरी समझ आ जाती। अरे ये सताहे समंदर में तो कुछ नहीं मिलता, मोती तो हमेशा समंदर की गहराई में ही मिलता है। Oh God. अच्छा ये बताइए,
आपके बारे में मशहूर है कि आपने पाकिस्तान को ख्वाब में देखा था। इकबाल साहब, इसका मतलब आप सो रहे थे ना? अरे नहीं, मैं जागते ख्वाब देख रहा था। कौमें नींद में नहीं, जागकर बनती है। पर कभी-कभी आपकी शायरी मुझे सुला देती है। Why are you so serious all the time? अगर मेरी शायरी तुमको सुना देती है तो तुम्हारी रूह थकी हुई है। मेरी शायरी का मकसद तो जगाना है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर। Oh my God, no. It's okay, calm down. Let's take rapid fire. Let's switch gears right away. Okay. अगर आज आप एटलांटा में सेल्फी लेते तो उसका कैप्शन क्या लिखते? सेल्फी सिर्फ लम्हों की है, खुद ही हमेशा बरकरार रहती है। ओफो, तो आपको तस्वीरें खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था क्या? मेरे अशार मेरी तस्वीरें थी, बाकी सब पर्दा है, धोखा है। पर्दा. So did you sing sometimes like पर्दा है, पर्दा? मेरी अल्फाज में सदाए हक थी, गाने नहीं, नारे थे। अच्छा, ये बताइए, आपको बिरयानी पसंद थी या पुलाव? मेरी भूख रोटी की भूख नहीं, कौम की गैरत की भूख थी। आपको देखकर लगता है कि मैं हमेशा भूखा ही रहूंगा। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आपने वो पतंग जी हाँ, मेरी पतंग मेरा शाहीन था। Oh dear God. मेरी पतंग मेरा शाहीन था जो बुलंदियों में परवाज करता है। शाहीन की अजमत ये है कि वो बुलंदियों का तलबगार है। वो जमीन की आसाइशें और सिक्के की गुलामी को कभी कबूल नहीं करता। Oh my God, इकबाल साहब, I've had it. मैं इतनी देर से आपको cheer up करने की, perk up करने की कोशिश कर रही हूँ। Why are you so serious? संजीदगी उस दिल की पहचान है जिस पर मत के जख्म। संजीदगी वो जेवर है जो शख्सियत को वकार बख्शता है और दिल की गहराई को रोशनी से मुनव्वर करता है। रोशनी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप हमेशा जागते रहते थे, आपको इंसानियत तो नहीं था? हमेशा जागता था और यही ख्वाब देखता था, सितारों से आगे जहां और भी कभी इश्क के जहां और भी है। इश्क, finally. Part of Allama Iqbal's map. Okay. आप ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिली जब मैंने अपनी कौम को बेदार पाया और नौजवानों को बुलंद निगाह पाया। मेरी खुशी मेरी जाती मुसर्रत से नहीं, कौम की इज्तिमाई बेदारी से जुड़ी थी। तो आपका अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? मेरा ख्वाब ये था कि मुसलमान अपनी भूल भी अजमत भूल गए। मैं चाहता था कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी तकदीर के खुद मालिक बने। मेरा सबसे बड़ा अफसोस ये था कि मुसलमान अपनी खोई हुई तारीफ भूल गए। जब मैं उन्हें दूसरों के दर पे झुकता देखा तो मेरा दिल उनके आंसू रोता था। तो इस सब के लिए आप शायरी क्यों करते थे? अरे बीबी, शायरी मेरा जरिया इजहार थी। लफ्जों को मैंने हथियार बनाया ताकि सोए हुए दिल जाग सके। मेरी शायरी तफरी नहीं, एक सदा थी। अच्छा, सोने से मुझे याद आया, आपको रातें ज्यादा पसंद थी या दिन? सवाल तो आपने बहुत गहरा किया। Really?
रात की तारीकी में फिक्र गहरी हो जाती है, दिन रोशनी की अलामत है। मैंने दोनों को जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझा। क्या बात। तो आपको सबसे ज्यादा मीठी लैंग्वेज कौन सी लगती थी? उर्दू मेरे दिल की धड़कन थी, मगर फारसी में मेरी रूह ने परवाज की। मैंने दोनों को दो परों की मानंद समझा। वैसे इकबाल साहब, since you've experienced it already, आपको मौत से डर नहीं लगा? अरे नहीं, मैं मौत को नई जिंदगी की दहलीज समझता हूँ। मैं इसे विशाल समझता हूँ, फिराक नहीं। अच्छा, तो आप हमेशा कहते रहते थे ना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, say a man comes and says, इकबाल साहब, अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि my legs are weak, मेरी कांपी टांग रही हैं, I can't climb up like that, then कमजोरी जिस्म की तो हो सकती है, इरादों की नहीं। बुलंदियों पर वो ही पहुंचता है जो अपनी कमजोरियों को शिकस्त दे। ना तू ज़मीं के लिए है, ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। तो आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी ये नहीं कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, कामयाबी तो ये है कि तुम अपनी रूह को खुदा के करीब कर दो और अपनी कौम को बेदारी का रास्ता दिखा सको। I kind of had it all wrong all this time. But anyways, Iqbal Sahab, I really appreciate your time. आपने हमें बहुत वक्त दिया. All right, guys. But before we go, आपका आखिरी पैगाम अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए आज के वक्त में क्या होगा? Please, your last final message. ए इंसान, दुनिया बदल गई, मगर तेरी गफलत नहीं गई। मैं तो यही पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आया था, मगर तुम लोगों ने कौमियत का, नेशनलिज्म का बुत तराश लिया। उठो, अब भी वक्त है। इश्क को अकल पे तरजीह दो, अपनी खुदी को पहचानो, यही तुम्हारा खोया हुआ ताज है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत